અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ થી બીપી નોર્મલ થાય છે. સામાન્ય બીપી થી માંડીને ક્રોનિક બીપી અને એનાથી બી વધારે જેનેટિક બીપી સારું થાય છે. એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આજે વાત કરીશ. અને બીપી એનાથી પેરાલાઇસિસ થાય, હાર્ટ એટેક થાય, કિડની ફેલિયર થાય, એનાથી ગુસ્સો આવે, નીંદ ઉડી જાય. અને આ લાઈફ થ્રેટનિંગ ડિઝીઝ છે. એલોપેથીમાં કંટ્રોલ તો થાય દવાથી, પણ ક્યોર નહીં થાય. અમે બીપી ને ક્યોર કરીએ છીએ આ અનુલોમ વિલોમ થી, પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત થી, અને શીતળી શેતકારી. નાનકડા નાનકડા ઉપાયો છે. અને પછી આ જમણી બાજુમાં જે ચાલી રહ્યું છે આ શિરોધારા અને આ આર્મ ફૂટ હિપ બાથ અને સ્પાઇન બાથ. એ સ્પાઇન બાથમાં પાછળથી પાણી આવે, થોડું ઊભું થાય તમારા ભાઈ. આ બહુ જબરદસ્ત છે. પછી નીચે જાઓ ધીમે ધીમે. સ્પાઇન બાથ, આર્મ ફૂટ અને હિપ બાથ. અને આ શિરોધારા એ ગાયના દૂધથી કે છાશથી તમે કરો. બધા જ કરી શકે, ઘરમાં જ કરી શકે. આવું યંત્ર બનાવીને બધા તો જુગાડ કરીને કરી શકે ને, તો આવું યંત્ર પણ મળે છે. અને આ સ્પાઇનમાં પાછળથી આઈસ મસાજ આપી રહ્યા છે, તરત બીપી નોર્મલ થાય. અને આ મડ થેરાપી એ અશ્વિનભાઈએ એને તો દાદા દાદી પિતાજી અને 2 પેઢીઓથી ત્રીજી પેઢીમાં આમાં આવી ગયું. એને પહેલાનું ખ્યાલ નહીં કોને હતું કે નહીં હતું. એ જેનેટિક બીપી ને મટાડી નાખ્યું છે. આ બધા થેરાપીઓ અને મૂળ બાદ યોગનો અભ્યાસ. અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત, શીતળી શીતકારી આ કરે. દૂધીનું જ્યુસ પીએ. ભૂખ્યા પેટે મુક્તાવટી. જમ્યા પછી બીપી ગ્રીટ લઈ લે. ફક્ત 1 થી સારું થઈ જાય. અને જેને ઊંઘ નહીં આવતી હોય તો આ મુક્તાવટીનો પ્રયોગ કરી લે એનાથી. અને આ જે રુદ્રાક્ષ છે ને, આ મોટી રુદ્રાક્ષ મૂકેલી છે અહીંયા, આ મોટી રુદ્રાક્ષ જે પહેરી છે કે તો આ પહેરી લે. એ તો ઘરે પહેરી છે કે પૂજાની વખતે સવારે. અને આ તો આખા દિવસ ગળામાં નાખી શકે. એના સ્પર્શ માત્રથી એનાથી બીપી નોર્મલ થાય. તુલસીની માળાથી બીપી નોર્મલ થાય. મોતીની માળા પહેરો એનાથી નોર્મલ થાય મોતીથી. અને પછી અંદરથી નબળી પડી જાય તમારી અંદરની નસો, એના માટે ઇમ્યુનોગ્રીટ ગોલ્ડ. આ તો બધા ઉપાયો બતાવ્યા. માથા ઉપર આ ચંદનનું તિલક લગાવો. આ બધા ઉપાયો કરીને લો બીપી, હાઈ બીપી બધું સારું થાય. અને સૌથી પહેલા શરૂઆત ગુજરાતી ભાઈઓથી આપણે કરીએ. ગુજરાતી આવડે છે અશ્વિન? ગુજરાતી જ છે? ગુજરાતી જ છું. હા સ્વામીજી નમસ્કાર. નમસ્કાર. મને એજ ઓફ 38 માં બીપી ડિટેક્ટ થયું. એટલે હું ચેક કર્યું કે મને બીપી છે. પછી મારા ફાધર અને મધરને બીપી છે. ફાધરને એજ ઓફ 50 માં પેરાલિસિસ થયો હતો અને દાદા દાદીને એજ ઓફ 60 માં પેરાલિસિસ થયા અને એમને બી બીપી હાઈ હતું અને એમની ડેથ થઈ હતી. એટલે પછી હું યોગ, પ્રાણાયામ અને નેચરલ લાઈફસ્ટાઈલ કર્યું. એટલે મારું બીપી ક્યોર થઈ ગયું. અને અત્યારે મારી એજ ઓફ 49 કમ્પ્લીટ થઈ છે, 50 એજ થઈ છે. અને મારું બીપી 120/80 છે, જે પહેલા મારું 155/95/100 જેવું રહેતું હતું અને બહુ ગુસ્સો આવતો હતો. અત્યારે એકદમ નોર્મલ છું. અને અમે યોગગ્રામ નિરામિયમમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી આવું છું. દર વર્ષ આવું છું. બીજાને યોગ શીખાવે છે. એ સારી વાત. બીજાને પણ યોગ શીખાવે છે. અને યોગ ક્લાસ ચલાવું છું વાપી, ગુજરાતમાં. બીજાને પણ યોગી બનાવે છે. બેન ના આપો તો જેનેટિક બીપી એ કહે કે એ તો બહુ અઘરો છે, એ તો સારું જ નહીં થાય. એ પણ સારું થાય. બાકી નોર્મલ બીપી તો મટે જ છે. કોઈ પણ કારણે થયું હોય, અનિદ્રાથી થયું હોય કે સ્ટ્રેસથી થયું હોય કે લેસ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, ઓવર ઇટિંગ થયું, ઓબેસિટી થયું હોય, કોલેસ્ટ્રોલથી થયું હોય, હાર્ટથી થયું હોય કે કિડનીથી થયું હોય, કોઈ પણ કારણે થયું હોય, પિત્ત વધવાથી થયું હોય, બધા જ કારણોનું નિવારણ થાય યોગથી. જી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. ઓમ. બાપા મને 2003 માં આવ્યું હતું 260 બીપી. 260 એટેક આવી ગયો. તેરે રામ રામ. મરી નહીં પછી તું?
मर गई थी वो 5th दिन आ गई। 260 बीपी तो बहुत मोटू होए। हाँ वो राम राम। पूरी सो गई थी। बाद में 2 तो पैरालिसिस में आया। वो राम। वो तो मैंने आपको सब सिखाते थे वो अच्छा चीज पूरी सारी हो गई। डायबिटीज 4 वर्ष की आई मुझे। बीपी ની દવા 4 વર્ષ થી અમારી બંધ થઈ મૂકી દીધી। હા બસ। और क्या थी माताजी पिताजी थी? માતાજી। माता શું નામ તારું? મારું નામ શર્મિલા। શર્મિલા। હા। શર્મિલા ને એ માતાથી આવ્યું હતું અને 260 બીપી અરે રામ। મારા મામા ને પણ હતું। હા એટલે જેનેટિકલી ચાલતો હતો। હા મટાડી દીધું। મને તો પૂરું ક્લીન હો ગઈ। તમારી ઉંમર કેટલી? 55। અત્યારે નહીતર અત્યારે તો હા મેં ફોટો તો ઉપર માળા આવી ગઈ હોત। હા કબ से 20 વર્ષ પહેલા आ गई। આ નાની ઉંમરમાં જ બીપી થઈ ગયો હતો અને જેનેટિકલી હતો। ऑपरेशन किया था ना गर्भाशय का, वो तब भी मर गई थी। तभी वो बीपी बढ़ गई। અત્યારે તો મરશે નહીં। હા તરશે। अब तो तुम्हारे चरण आ गया मेरे सामने। એને આપો તો। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओम અને सूक्ष्म चलो सूक्ष्म ओम। जी जी गुरुजी। प्रणाम बहन। मैं संतोष शर्मा। मेरे को 10-11 साल से बीपी है और 230 तक मुझे बीपी गया हे राम राम। और मेरे को चक्कर आए। मैं नीचे बेहोश होके गिर गई। मुझे पता नहीं, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके गया। फिर डॉक्टर ने तुरंत मेरे इंजेक्शन लगवाए। फिर बाद में 1 घंटे बाद में मुझे ध्यान आया और तब से मैं तो मेडिकल की दवाइयों पे हूँ। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि गुरुजी के पास में मैं जाऊँ। कोई मेरे को सुरेंद्र जी शर्मा अग्रवाल जी वो लेकर आए हैं। 3 दिन में 2 तारीख को मैं गुरुजी के पास यहाँ आई हूँ और 3 दिन में मेरे को 125 बीपी आ गया है। 3 दिन में 3 दिन में मुझे आ गया। इसमें देखो और सारी थेरापी या योग तो काम करता ही है, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति भी काम करती है जी गुरु कि मन को ये संतोष हो गया कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगी। जी। तो इतना सोचने से ही ठीक हो जाते हैं हाँ कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जी। बाकी तो यहाँ सब थेरापी कर ही रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, योग करवा रहे हैं। तो अब ऐसे ही क्या नाम संतोष, जी हाँ संतोष अपने मन में संतोष रखना जी। तो ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी माँ से हाँ जेनेटिक। हाँ उनसे आया। उनको पैरालिसिस हो गया और पैरालिसिस में ही उनकी डेथ हो गई। अरे राम राम। तेरे को 2002 के अंदर। ये बड़ी दर्दनाक चीजें होती। आगे देना मीठू को। ओम बाबा जी, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और पिछले साल कलकत्ता गई थी। फरवरी महीने में मेरे को अटैक आ गया था। तो पता चला 250 बीपी हो गया था। मेरा दादा दादी को। हाँ तो मैं अस्पताल में पहुंच गई थी और 5 दिन वहीं पे रही। और फिर मैंने ये करी शपथ ली, इस बार कलकत्ता नहीं जाऊंगी, रामदेव बाबा के पास ही जाऊंगी। तो फिर ये अच्छा है। अभी बहुतों का पियर यही योगाग्राम निरामय हो गया है। हाँ, बहनों के लिए मेरे दादा दादी को भी थे, मम्मी पापा को भी है और मेरा बहुत साल से था। तो दवाई खाती थी, लेकिन अभी जब से मेरा अटैक हुआ, आपकी पतंजलि का नमक, सेंधा नमक ही खाती हूँ, बहुत कम। नमक भी अच्छा, सेंधा नमक। हाँ, वो भी थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पे आई हूँ 4 दिन से और मेरा वेट भी बहुत कम हो गया है, आंखों भी बहुत ठीक हो गया है। तेरे चेहरे पर भी चमक आ गई। हाँ, हाँ आपकी आशीर्वाद है। ये मेरे को बोल रही है। पहली बार मेरे को किसी ने बोला बाबा जी बड़े बोल्ड लगते। हाँ तू तो सुपर बोल्ड है। चलो पीछे देना। तुम सभी में अपरिमित शक्ति है, अपने आप को जगाओ। ओम बाबा जी, मेरा बीपी 10 साल से है। चलो बीच में कुछ दिन होम्योपैथिक दवा खाए हैं। हाँ। उसके बाद अब ठीक भी है। फिर इसका पतंजलि आया तब से मेरा ठीक है बीपी भी। अब वजन भी 5 kg कम किए। और किससे था बीपी? माता पिता पापा से। पिता से था। किसी को पिता की, किसी को माँ की साइड से था। अब नॉर्मल कर लिया, वेट भी ठीक कर लिया, अब खुश है। अब आगे भाई को देना। गोल गोल प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड। 62 साल की उम्र है मेरी और मेरे को 110 बीपी रहता था। राम। तो अभी तो बड़ा खतरनाक है 110 ना, बहुत डेंजर होता है नीचे। इंग्लिश गोलियां मैं खा रहा था
तो उससे यहाँ आने से पहले दिन से बंद कर दिया। अब 130/88 आ गया है। ये तो जोरदार काम हो गया। बाकी और थायराइड की गोली मैंने 10 साल चल रही थी, 1.5 साल से वो बंद है थायराइड की गोली। लीवर मेरा कभी ठीक नहीं था, अब 20 से नीचे आता है GT-OTPT। 30 के, जबकि 40 की रेंज होती है, उसको भी बिलो नॉर्मल कर लिया। पहले कभी नहीं आया सारी जिंदगी। तो अभी क्या कर रहे हो? बस योग कर रहे हो और सर्वकल पीते हो? हाँ जी, पीते। सर्वकल बहुत अच्छा लीवर के लिए। अब पहले लीवर कभी ठीक नहीं रहता। लीवर पहले सारी जिंदगी कभी ठीक नहीं आया। लो, अब 1.5 साल से ये 25 रुपए का काढ़ा है, ये ठीक कर देता। अब 1.5 साल से बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है लीवर। ये सबसे बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। PNB से रिटायर हो गए हैं, अब 8 साल की एज है। अब योग करवाया करो खूब। हमारा भी सबसे पहला बैंक PNB है। हाँ जी, हाँ जी। ओम बाबा जी, ये भी कहा। मैं यूपी जिला जालन उरई से बोल रही हूँ। हाँ, मुझे 30 साल से बीपी था। 30 साल से? जी। उम्र कितनी तेरी मैया? 60। तो 30 साल में बीपी हो गया? जी। ओ, इसके बाद बराबर मैं दवा लेती रही, पर आराम नहीं पड़ा। यहाँ आई हूँ, जब से मुझे एक भी दिन दवा नहीं लेनी पड़ी और बीपी बिल्कुल सामान्य है। हमारा 100 और 160 रहता था। ओ, और किससे आया? माता से, पिता से? मेरे फादर से आया है। पिता से आया था? जी। ये जीन्स में आ जाता है, जेनेटिक बीपी बोलते हैं। अब वो नॉर्मल कर लिया माता खुश। और वजन कितना कम करे माता? अभी हमारा 3 kg हुआ है। तो और हो जाएगा? जी। मेरी जैसी हो जाएगी। लेकिन मैं इस कंडीशन में यहाँ आई हूँ कि अभी आज के 10 दिन पहले 3 कदम भी हम नहीं बढ़ा सकते थे। हाँ जी। अब तो तू दौड़े फिर रही है? जी जी। तो मेरे बच्चे ने देखा कि हम चल भी नहीं सकते। मैं रात दिन रोती थी, 3 दिन रोई रात दिन, और टॉयलेट नहीं जा सकती थी, बिस्तर पे थी। आम बात जी मुझे मैंने दिखाया तो आम बात मुझे बताया। अब यहाँ हम 1 किलोमीटर भी दौड़ के जा सकते हैं। ये तो रजनी सिंह ने तो कमाल कर दिया। ओम, मैं पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ स्वामी जी। मैं तो सोच रहा था अभी सेवा में प्रवृत्ति हो, तुम तो रिटायर लगे नहीं रहे। आज मुझे 10 साल होने जा रहे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? लगभग 70। 2000 में? भाई ये तो सच्ची बात है भाई, पक्की बात है। 60 से भी कम लगते हो तुम। नाम क्या? देवेंद्र सिंह, खुर्जा, बुलंदशहर। खुर्जा की तो खुरचन और मिठाइयाँ बड़ी जबरदस्त। जी स्वामी जी। पोल्ट्री का विशेष उद्योग है स्वामी जी। ये सब जब मैं पुलिस सेवा में था 2013 में मुझे बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जिसकी वजह से मुझे स्टेन हो गया। एक स्टेन पड़ा तो मैंने, डॉक्टर ने जो सलाह दी कि आप ये गोलियां खाएंगे, मैंने कहा 6 महीने तक को मैं खाऊंगा। उसके बाद में मैं गोलियां नहीं खाऊंगा, और ये उसका परिणाम हुआ कि मैं आज आपके आशीर्वाद से आपके सामने बैठा हूं। लोग सब यही कहते हैं। एडिशनल एसपी ने जब मुझे सेवानिवृत्ति के समय देखा तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। ये स्वामी जी का और हमारी योग से तेरे को जीवन मिला, तो अब आगे का जीवन योग के लिए दे देते हैं। स्वामी जी नित्य यज्ञ करता हूँ। योग यज्ञ नित्य करते, क्या बात है। और औरों को कराए को। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली से हूँ। मेरे को जेनेटिक बीपी भी था। ये अनुलोम विलोम भी कर लो। मेरी मदर से उनको भी बढ़ जाता था, पित्त बढ़ने से बढ़ता था। हाँ मैंने बताया ना, पित्त भी एक कारण है। हाँ, मुझे भी पित्त बढ़ने से ही बढ़ता है एकदम। कुछ भी गर्म चीज खा लूँ उससे बढ़ता है। और मेरे को 2 साल पहले थायराइड था 40, वो मैंने उजाई और पॉइंट दबा के और आपकी वो गोली खा के ना थायरोग्रिड, अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। थायराइड भी नॉर्मल? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है स्वामी, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स है। ये तो सुनीता तो एकदम पूरी शेरनी की तरह। हाँ, मैं पीछे लगातार मेरा डायग्नोस हुआ था ओल्ड कैल्सिफाइड ग्रेन्युलोमा। बीपी बढ़ने से मेरे को एक बार नक्सीर आ गई रात को। तो तब खून आ गया? हाँ, तब फट गई नींद में ही स्वामी, नींद में रात को वहाँ 2 बजे। फिर तब हम हॉस्पिटल गए, CT स्कैन कराया, तब उसमें पता चला। तो तब से फिर मैं प्राणायाम कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम बाबा जी, मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा नाम सुनीता देशमुख है। मेरे को जेनेटिक बीपी था, मेरी मम्मी से आया है मुझे। अभी मैं प्राणायाम से मैंने मेरा बीपी ठीक किया है।
अब नॉर्मल आ गया? नॉर्मल आ गया। यहाँ पे भी चेक किया तो नॉर्मल है, वहाँ अमरावती में भी चेक करती थी तो नॉर्मल है। अभी सब लोग घर के बोलते हैं बीपी की गोली ली है क्या, मैं उसके साथ झूठ बोलती है, मैं वो डस्टबिन में डाल देती है और बोलती है कि दी है, लेकिन प्राणायाम सुबह शाम 2 बार करती है। बड़ा झगड़ा रहता है। हाँ, मतलब एलोपैथी का ऐसा प्रचार करते हैं जैसे MNC वाले उनके रिश्तेदार लगते हो, फूफे लगते हो। बेटी है मेरी मेरे पीछे लगती है, मम्मी गोली ली है, मम्मी गोली ली है। योग के पीछे लग जाओ, इतना अच्छा है। तो मैं बोलती हूँ, लेकिन इसमें डस्टबिन में डाल देती है गोली रोज। ये ठीक है, तो पत्ता देखते तो साफ मिलता है। ठीक है, पत्ता तो खत्म हो गया। ये जोरदार बात बताइए। बस सिर्फ मैं घर वालों को राजी रखना है ना। यहाँ आके मेरा अस्थमा, मेरे को दम लगता था, श्वास लगता था। अभी 3 दिन से मैं पंप भी नहीं ले रही। ये लो, और भी ठीक कर लिया दूसरा। पंप भी कम, उसको देना दूसरी को। ये भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। हाँ बता, तेरा क्या नाम है? प्रणाम। हाँ। मैं माया। मेरे तो को माया की काया में भी क्या क्या फायदा हुआ बता। स्वामी जी, मेरा बीपी था 3 साल से। अभी मैंने गोलियां जब से यहाँ आई तब से बंद कर दी है, और अभी चेकअप हुआ था तो नॉर्मल आया है मेरा बीपी। नॉर्मल कर? हाँ जी। और किससे आया था, माँ से, पिता से? किससे? पिताजी से। जेनेटिक बीपी। और वेट कितना कम किया माया? अभी वेट तो कम नहीं हुआ पंडित जी। हाँ, सभी गोल मटोल दिख रही। हाँ स्वामी जी, वेट कम नहीं हुआ है। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अंदर से ना। हाँ, धीरे धीरे। उपवास भी करना। अच्छा। वाटर थेरापी, मड थेरापी, फिर ये सारी ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, स्टीम अच्छे से ले। शुगर भी है स्वामी जी। उसका क्या हाल है? शुगर भी नॉर्मल आई है अभी। तो कोई नहीं, 2 चीजें तो ठीक होगी, वेट भी ठीक हो जाएगा। हाँ, वेट ठीक करना है। तो वेट भी कोई तगड़ा तो नहीं घर में माता पिता? नहीं, कोई नहीं था, सब ठीक थे, लेकिन मेरा ही वेट बहुत ज्यादा है। तो तेरा कैसे बढ़ गया? ऐसे कैसे हो सकता है? खाने पीने में क्या करती है तू? अभी तो खाने में या तो खाने पीने से बढ़ता है, या तो हार्मोन इम्बैलेंस से बढ़ता है, या तो पीरियड उल्टा पुल्टा होने से बढ़ता है, या तो थायराइड से वजन बढ़ता है। हाँ, थायराइड भी है। हाँ, अब पकड़ी गई। हाँ। वो भी ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट भी दबाना और थायरोग्रिट भी ले लेना जी, और धनिया का पानी पी लेना। ओम गुरु जी। हाँ भाई। कमलेश कुमार, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र से आया हूँ। मुझे 2001 में बीपी बढ़ा और मेरा ऑपरेशन भी अपोलो में हुआ। अरे राम राम, 21 साल पहले ब्रेन हेमरेज हो गया था। ये स्ट्रोक हो गए थे। ओह, स्ट्रोक हो गया। हमारी मेमोरी चली गई थी सर। मेमोरी चली गई? मेमोरी चली गई थी, फिर ये ऑपरेशन हुआ। इसके बाद बीपी हमारा कंट्रोल रहा, लेकिन 2018 में मैं चूंकि इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था, उसी वर्ष रिटायर्ड होना था 2018 में। रिटायर्ड होने के पहले ही बीपी बढ़ा और जिस अस्पताल में दिखाने गया उन्होंने वहीं भर्ती कर लिया और हमें सब डाल दिया पेसमेकर। हमने उनसे बहुत कहा कि भाई हमें इलाज कराने जाना है, बेटा मेरा पतंजलि में है, वहाँ मुझे जाना है। बोलिए अपने रिस्क पे जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर लोग तो ऐसे डरा देते हैं कि यहाँ टेबल से बाहर गया तो मर जाएगा, जैसे वो पूरा उन्होंने मतलब सर्वशक्तिमान और भगवान का काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है। फिर उसने पेसमेकर डलवाया था, 2001 से पेसमेकर है। इसके बाद अभी हमारा 1 साल पहले बीपी बढ़ा फिर, और बीपी की दवा में ले रहा था। बेटे ने से हमने जब कहा तो हमें उनकी माता जी को था, हमारी वाइफ को और मुझे भी था, तो वो यहाँ लेके आया। पदार्था में आपके यहाँ AGM है, अभिषेक कुमार सिंह जी जी। अभी जब से मैं यहाँ आया हूँ हमारे दोनों का बीपी बिल्कुल कंट्रोल है, एक भी गोली में नाम नहीं खाया हूँ। प्रणाम स्वामी जी, मैं 61 साल की हूँ और रिटायर हो गई हूँ। क्या करती थी? मैं टीचर थी, CBSE स्कूल में मैथ्स टीचर थी मैं। तो अभी रिटायर क्यों हो गई? पढ़ा? हाँ जी। या पढ़ा? 60 इयर्स की थी तो इसलिए रिटायर उनको करना पड़ा। वैसे मैं फिजिकली तंदुरुस्त हूँ मतलब, और कभी कभी मेरे को बीपी थोड़ा हाई हो जाता था, लेकिन मैंने आपका प्राणायाम सारा करती हूँ पूरा, और एलोवेरा जेल ये फ्रेश हम पीते हैं। ये तो तेरा ही बता रहा है कि एलोवेरा पीती भी और लगाती भी। क्या नाम है? लगाती भी हूँ मैं, लगाती भी हूँ डेली, और हमने 20 गमले लगाए हुए हैं छत पर
उसमें एलोवेरा लगा दिया। हाँ जी, और एलोवेरा उसमें फिर लगा बच्चे दिया। पैदा हो जाते हैं। जी 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 जी। और फ्रेश एलोवेरा जूस पीते हैं। क्या नाम है तेरा? सुमन रावल। सुमन रावल। हाँ जी, अनिल रावल जी की वाइफ हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ और 59 मेरी एज है। मैं वोल्टास कंपनी के अंदर जो नौकरी करता हूँ। हाँ, टाटा कंपनी का बढ़िया एसी बनाते हैं वोल्टास। तुम्हारा क्या हाल है? सर मेरे को 25-30 साल से मेरे को स्टोन बनते हैं। ओहो। ठीक है, और किडनी में से निकलते हैं। किडनी में से बनते निकलते हैं क्योंकि कपाल भारती करता रहता हूँ मैं। उसकी वजह से वो बिल्कुल जैसे कॉटन होता है ना, ऐसे पेशाब में से निकलते रहते हैं। इतना फॉर्मेशन होता है। हाँ। ये भी बॉडी की टेंडेंसी, क्योंकि मेरा पित्त बड़ा रहता है। हाँ। ठीक है। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र। और उसके अंदर क्या है कि मेरा उसकी वजह से बीपी मेरा बढ़ गया, मुझे मालूम चला नहीं। एक दिन मैं अपना बॉडी चेकअप कराने गया, वहाँ पता चला कि 160 बीपी चल रहा था। डॉक्टर ने कहा इमीडिएट दवाई लो, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ आपको। मैंने वो दवाई खाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये आपकी मेडिसिन लेके 2 दिन खाई, बस 2 दिन। हाँ, ये वाली खाई 2 दिन। 2 दिन में मेरा 130 बीपी आ गया, उसके 30 के ऊपर ही टिका हुआ है। ये तो तुरंत खा लो, चबा करके खा लो, 5 मिनट में फायदा हो जाता है। एलोपैथी से भी ज्यादा रिजल्ट है इसका। लोग एलोपैथी की दवाई पता नहीं क्यों खाते हैं, और ये प्रमाण बैठे हैं हमारे। 2 दिन खाइए, बाकी बांट दी सबको, जिसको बीपी था उसको बांट दी। ये ठीक है, और अच्छा काम कर दिया। तो ये वोल्टास के एसी बनाते हैं, खूब भी एयर कंडीशन होगा। रिटायर होने वाले हैं, अभी 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। ये बात, अब योग की सेवा में लगना, सब रिटायर होगा। सब आपके पास आ रहे हैं सर। मेरा काम जो है बड़े प्लांटों का है, जो चिलिंग प्लांट होते हैं बड़े, उसका ज्यादा काम। ठीक है, तो पतंजलि के सारे एसी और सारे चिलिंग प्लांट आप ही देख लेना। ठीक है, यहाँ भी बड़े बड़े प्लांट हैं। VRV है, VRV आपका लगा हुआ निरावयम में। सारे आप ही देखा करो। सभी मैं देखता हूँ ये। हाँ, अब ये एक बात कह करके, ऐसे तो कहने सुनने की बहुत बातें हैं। जिनको भी योग से आरोग्य मिला है, और अब आयु अभी और है 10-20 साल काम करने की, घर में बैठना नहीं। घर में बैठोगे तो आयु कम होगी, सेवा में सृजन में लगे रहोगे तो आयु भी और लंबी होगी, और पुण्य भी बढ़ेगा। आयु भी बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, और इससे जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य भी मिलता है। अपना कुल वंश सेवा से के पुण्य से अपने कुल वंश कई पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा है, कोई गृहस्थ में संसार में सेवा करता है माता पिता की तो धन्य है, लेकिन कोई सन्यासी होकर संसार की सेवा करे तो उसकी कई पीढ़ियां और कई कुल पीछे के और आगे के तर जाते हैं। तो तुम सन्यासी तो बन नहीं सकते अभी, कम से कम सेवा सन्यासी बन जाओ। क्या हूँ, ये पिछले 25-30 साल से आपको फील करती हैं। और इनका बीपी बहुत लो रहता है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल लो। और जाते आते बच्चियां 10-12 साल से जाते आते बचती हैं। हर साल सीजन जब चेंज होता है तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इनको ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड खिलाना, अभी डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और अश्वगंधारिष्ट पिलाना एकदम। अश्वगंधारिष्ट से ना, अश्वगंधारिष्ट इम्यूनोग्रिट गोल्ड, बीपी लो जाएगा ही नहीं। और ह्यूमिडिटी तो एचबी तो बिल्कुल ही डाउन है, 9 रहता है एचबी। एचबी के लिए भी जो अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर, खजूर, वीट ग्रास, एलोवेरा आदि बताते हैं, लेते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે એ સદાય નિરોગ રહેશે, માત્ર કોઈ બીપી ની વાત નહીં, એ તો જેનેટિક પ્રોબ્લેમ છે। આવી મોટી મોટી બીમારીઓને અમે યોગથી, યજ્ઞથી, આયુર્વેદથી, નેચરોપેથીથી મટાડીએ છીએ। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો। રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશ માં મોટો ખુલાસો, સોદાગર કોણ?